Dear students, in last lectures we have studied the monohybrid cross experiments performed by Mendel on pea plant, and we have seen that when the pure line parents are close together, then in case of F1 generation, only one character will express itself. Say for an example, if tall and dwarf parents are crossed, the tall and dwarf parents should be homozygous. They should be pure lines. Why we are saying homozygous or the pure lines? Because they are having same type of factors for their trait. Means if the tall parent is there, then it should have the same type of allele or factor. Means both the factors should be same. Capital T and capital T. This is the representation of your factor. And if it is dwarf parent, it should also have the same type of alleles for the dwarf character, means small t and small t. This is homozygous condition when the alleles are of similar type, and we call these parents as homozygous or the pure lines. So when pure lines are crossed, then in F1 generation there is expression of single character only. Means all the progenies are going to have only single type of character which is expressing. In this case, this stem height case, tall is going to express itself. All the progenies will be having tall height. Where is the dwarf character? Dwarf character is there in this F1 progenies because they are hybrid of tall and dwarf parents. But it is not expressing itself. Why not expressing itself? Because it is recessive. So tall is dominant. On which character? It is dominant over the dwarf character, and dwarf is recessive to the tall character. Okay. So ये जो स्टडीज थी, ये मेंडल की स्टडीज थी, उनके रिजल्ट से उनका प्लांट पी प्लांट था, लेकिन उनके बाद बहुत सारे दूसरे प्लांट्स पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए। आज इस बोर्ड पर हम एक और प्लांट के बारे में बात करेंगे। सेम वही पैटर्न से हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाएंगे जैसे मेंडल की स्टडीज रही थी। उन्होंने 2 प्योर प्लांट्स को क्रॉस करवाया था F1 जनरेशन में, जो भी रिजल्ट आए उसके बाद उन्होंने सेल्फिंग की थी। तो इसी तरीके से इस बोर्ड पर भी हम सेम पैटर्न से मोनोहाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर पी प्लांट नहीं है। Here is another type of plant which is known as snapdragon flower और snapdragon plant, antirrhinum और डॉग फ्लावर प्लांट। इसको हम 3 नाम से जानते हैं, डॉग फ्लावर प्लांट, स्नैपड्रैगन और द एंटीराइनम। तो इस प्लांट के में भी हम एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करने वाले हैं, दैट इज द फ्लावर कलर, एंड दिस फ्लावर कलर हैज 2 traits, 2 contrasting traits which are red and white. Means this plant bear 2 types of flowers. Pure line plants are going to bear 2 types of flowers, red and white. So let's study when the pure lines are close together, what will be the result. क्योंकि मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में भी हमने शुरुआत प्योर लाइन पेरेंट से या होमोजाइगस पेरेंट से की थी, तो हम यहाँ पर भी प्योर लाइन से ही शुरू करेंगे। बिल्कुल सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि क्या ये रिजल्ट्स बिल्कुल मेंडल के पी प्लांट के रिजल्ट हैं या इनसे कुछ डिफरेंस है। सो यहाँ पर हमने एक पेरेंट लिया है जिसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कैपिटल, इसका जीनोटाइप लिखा गया है कैपिटल R। ओके, दिस टू बोथ ऑफ दिस 2 पेरेंट्स आर प्योर लाइन्स, होमोजाइगस है। तो एक पेरेंट ऐसा है जिस पर रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, एंड द सेकंड parent is going to bear the white colored flowers. So one is bearing the red flowers, other is bearing the white flowers, and both of these parents are pure lines. अब इनका red और white जो हम बात कर रहे हैं, we are giving the color to these plants flowers as red or white. तो ये इनके phenotypes को हम मेंशन कर रहे हैं। We are mentioning the phenotypes, external appearance, उनके फ्लावर्स कैसे दिखाई देते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि हर कैरेक्टर
करेक्टर, जैसे यहाँ पे फ्लावर का जो कलर है, ये फ्लावर कलर जो है ये किसी फैक्टर की वजह से आता है, तो वो फैक्टर का नाम हमने यहाँ पर R रखा। We are going to represent the factor as R. Okay, and Mendel had also postulated that the factor is present in paired form. तो इसीलिए हम इसको कैपिटल R और कैपिटल R, we are showing it homozygous because ये प्योर लाइन्स है, तो हम इन्हें homozygous शो करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर व्हाइट फ्लावर्स की बात करें तो यहाँ पर आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे, यहाँ पर हम स्मॉल r यूज करेंगे। Why we are going to use small r not other letter? Because we have studied that if character is same, ये मोनोफैब्रिक रोज है, यहाँ एक ही कैरेक्टर यानी फ्लावर कलर को हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ एक ही टाइप का लेटर हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमने इसको कैपिटल यूज किया है और दूसरे सिंबल को हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है। तो दिस इज स्मॉल r is representing the factor for white color and capital R is representing factor for red color। and यहाँ पर हमने इनको कैपिटल R स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है, जो ये बताता है कि इनका जीनोटाइप है और ये होमोजाइगस है। So this is the selected parents, these are the two selected parents, pure line parents। अब इसके बाद बिल्कुल वही स्टेप जो मेंडल ने फॉलो किए थे, बिल्कुल इनके बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं और क्रॉसिंग के बाद इनके रिजल्ट्स क्या है। तो जब स्नैपड्रैगन में रेड और व्हाइट फ्लावर्स के बीच में क्रॉसिंग करवाई जाती है, ऐसे पेरेंट्स के बीच में जिनमें रेड और व्हाइट फ्लावर्स आते हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट कुछ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मेंडल की बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि F1 जनरेशन में उन्हें सिर्फ एक कैरेक्टर्स मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेंडल ने जो सेग्रीगेशन लॉ दिया था उसके अकॉर्डिंग गैमेट्स बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वी कैन मेंशन हियर दैट द गैमेट्स आर हैविंग सेग्रीगेटेड एलील्स, यानी जो इसके पेरेंट प्लांट का जो मान लीजिए ये फीमेल पेरेंट है, तो इसके जो एग है इसमें ये दोनों एलील्स अलग हो गए हैं। एक एग में ये वाली एलील पास हो गई है, दूसरी एलील दूसरे एग में चली गई है। इसी तरीके से व्हाइट फ्लावर की भी जो एलील्स हैं वो भी इसके मेल गैमेट्स में सेपरेट हो गई हैं। यहाँ पे हम क्योंकि ये एक जैसे ही एग्स हैं या एक जैसे ही मेल गैमेट्स हैं, इसलिए हम इनमें से एक को हटा सकते हैं। क्लियर? नाउ ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है इनके बीच में क्रॉस को, तो क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस करवाने के बाद हमें इन दोनों प्लांट्स का हाइब्रिड प्लांट मिलेगा। तो एक R इस पेरेंट प्लांट से और स्मॉल r यानी दूसरा जो फैक्टर है वो इस प्रोजेनी में आ जाता है इस पेरेंट से। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सेम वही पैटर्न है। गैमेटोजेनेसिस में सेग्रीगेशन हुआ, सेग्रीगेशन होने के बाद दोनों एलील्स फिर से पेयर्ड फॉर्म में आ गई हैं, लेकिन F1 जनरेशन में ये जो प्रोजेनीज हैं, ये प्रोजेनीज हाइब्रिड है। हाइब्रिड इन दोनों पेरेंट्स की, जिनमें से एक एलील इस पेरेंट से मिली है और दूसरी एलील इस पेरेंट से मिली है। ठीक है, तो इसका जीनोटाइप आप देख सकते हैं, इट इज कैपिटल R स्मॉल r, ये हाइब्रिड है। अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को फिर से रिमाइंड कीजिए। F1 जनरेशन में उन्हें भी कुछ ऐसा ही जीनोटाइप उनके प्लांट्स में एक्सप्रेशन हुआ था। जैसे अगर हम हाइट लिखते हैं तो कैपिटल T एंड स्मॉल t, ये जीनोटाइप उन F1 जनरेशन के प्लांट्स का था। यहाँ पर भी हमने सिंपल अलग यूज किए क्योंकि हम यहाँ पर फ्लावर कलर स्टडी कर रहे हैं और ये प्लांट भी कोई दूसरा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर R और स्मॉल r लिए हैं। अब आप बताइए, अगर मेंडल के एक्सपेरिमेंट बिल्कुल यहाँ पर उनके रिजल्ट्स को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर इस जीनोटाइप वाले प्रोजेनी का फिनोटाइप कैसा होगा, एक्सप्रेशन कैसा होगा, ये दिखाई कैसे देंगे फ्लावर्स। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में बात हुई थी कि एक ही टाइप का कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। बेशक ये हाइब्रिड है, बेशक यहाँ पर ड्वार्फ कैरेक्टर के लिए एलील है, लेकिन ये टॉल दिखाई देते हैं। सभी F1 जनरेशन में 100% प्रोजेनीज वर हैविंग टॉल कैरेक्टर बिकॉज
dwarf character was recessive. तो यहाँ पर भी ऐसा भी कुछ होना चाहिए, अगर रेड फ्लावर डोमिनेटिंग है तो ये सारे फ्लावर्स इन प्लांट्स के रेड आने चाहिए, और स्पॉज व्हाइट कलर एक्सप्रेस करता है या डोमिनेटिंग है तो इस केस में व्हाइट फ्लावर्स आने चाहिए, यानी या तो ये फ्लावर्स व्हाइट आने चाहिए या ये फ्लावर्स रेड आने चाहिए। लेकिन इस प्लांट के केस में कुछ ऐसा रिजल्ट मिला कि 100% प्रोजेनीज वर शोइंग pink color which is neither red or nor it is white। तो ना तो हमें इस पेरेंट का कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ना ही इस पेरेंट का कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, ये इंटरमीडिएट कलर शो कर रहे हैं जिसको हम पिंक कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क, ये पिंक कलर कैसे आया? अगर मेंडल के रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना चाहिए था, वो नहीं हुआ, यानी कि ये जो एग्जांपल है ये मेंडल के जो भी वर्किंग रही थी उनके वर्क से थोड़ा सा हम डेविएट कर रहे हैं। रिजल्ट्स आर डेविएटिंग फ्रॉम द रिजल्ट्स obtained in monohybrid process performed by Mendel on pea plant। यहाँ पे प्लांट भी अलग है और रिजल्ट्स अलग आ रहे हैं, क्या इसका रीजन हो सकता है? अब यहाँ पर एक छोटा सा गैस वर्क करते हैं, क्या रेड, अब यहाँ पे देखिए हाइब्रिड तो है, इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर तो है, तो क्या यहाँ पर कुछ ब्लेंडिंग हो गई है? जैसे हम कोई कलर लेते हैं, रेड और व्हाइट कलर, आपने दो तरह के वाटर कलर ले लिए और उन दोनों वाटर कलर्स को आपने पेंट ब्रश की हेल्प से मिक्स कर दिया तो पिंक कलर बनेगा। तो क्या यहाँ पे कुछ ब्लेंडिंग हो गई है कि पिंक कलर आ रहे हैं? क्या ये फैक्टर जिसको मेंडल ने कहा था कि डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं, स्टेबल होती हैं, पास हो जाती हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, क्या ऐसा कुछ है कि ये मिक्स हो गई है? क्योंकि कैरेक्टर तो हमें मिक्स नजर आ रहा है, पिंक नजर आ रहा है, ब्लेंडेड कैरेक्टर नजर आ रहा है, तो यहाँ पर हमें गैस वर्क कर सकते हैं कि ये ब्लेंड हो गया होगा। लेकिन अभी यहीं तक नहीं रुकना है, हमें इसकी सेल्फिंग करवानी है, क्योंकि आपको ये कहा था हमें वो सारे स्टेप्स करके देखनी है जो मेंडल ने अपने पी प्लांट के ऊपर किए थे। सो नाउ लेट्स परफॉर्म द नेक्स्ट स्टेप। तो ये पिंक फ्लावर है और इनका जीनोटाइप आप देख सकते हो, और इसका यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये हमारी F1 जनरेशन है, एंड F1 जनरेशन इज शोइंग द जीनोटाइप as capital R small r and phenotype as pink, 100% pink flowers होते हैं। Next step is selfing between these hybrid plants जो मेंडल ने किए थे। तो पिंक फ्लावर्स के लिए सेल्फिंग के लिए हम ये पेरेंट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से लिया, इन्हीं के बीच में सेल्फिंग करवानी है, तो ये जीनोटाइप लिखा है और हम ये लिखे कि ये पिंक है, पिंक फ्लावर्स की क्रॉसिंग पिंक के साथ करवाई जा रही है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? नेक्स्ट स्टेप विल बी, इसको हम यहाँ इधर ले लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में क्रॉसिंग, और अब इनके सबसे पहले हम बनाते हैं गैमेट्स। सो बिकॉज ये हेटेरोजाइगस पेरेंट्स हैं तो हम यहाँ पर दिखाएंगे एक गैमेट में कैपिटल आर और दूसरे गैमेट में स्मॉल आर। तो आप देख सकते हो हेटेरोजाइगस पेरेंट्स के गैमेट्स डिसिमिलर टाइप के गैमेट्स बनते हैं क्योंकि उनके पास अलग अलग तरह की एलील्स होती हैं। इसी तरीके से ये जो पेरेंट है इसकी भी एलील्स को अलग कर लेते हैं। क्लियर है? ये गैमेट फॉर्मेशन है, बिल्कुल सेम स्टेप्स चल रही है जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में किए थे, बस रिजल्ट थोड़ा सा यहाँ पर कुछ अलग आया है। Now we have these two types of parents with two types of gametes। अब इनके बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं, यानी F4 जनरेशन का रिजल्ट देखना है कि क्या आने वाला है। तो इसके लिए हम फिर से पुनेट स्क्वायर का यूज करेंगे। पुनेट स्क्वायर में जैसे आपको कहा था कि अपर रो में आप इन दोनों में से किसी एक पेरेंट के गैमेट को लिखते हैं और यहाँ पर इसका जो दूसरा कॉलम यहाँ पर लेफ्ट वाला जो कॉलम है इसमें भी आप गैमेट्स की को प्लेस करते हैं।
सो यहाँ पर इस पेरेंट के हमने गैमेट लिख लिए और इधर से इस रो के अंदर हमने दूसरे पेरेंट के गैमेट को लिख लिया है। आप यहाँ पे मेल और फीमेल का सिंबल यूज करें क्योंकि हम क्रॉसिंग दिखा रहे हैं। और अब इनके बीच में रोज एंड कॉलम से इनको सेपरेट कर लेते हैं जिससे कि हमारे पास ये स्क्वायर्स आ जाए। नाउ वी हैव टू क्रॉस दिस प्लांट्स। ये जो पुनेट स्क्वायर है जैसे आपको बताया गया था कि दिस शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जीनोटाइप्स, किस तरह के जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं, क्योंकि जो गैमीट फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आएगी वो रैंडम प्रोसेस होती है। कोई भी गैमीट, कोई भी मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करने की प्रोबेबिलिटी रखता है और उसकी वजह से अलग अलग तरह के जीनोटाइप के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं। तो इस पुनेट स्क्वायर से हमें वो सारे कॉम्बिनेशंस की जानकारी मिलती है कि ये पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं इन दोनों प्लांट से क्रॉसिंग के बाद। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इस कैपिटल आर और इस कैपिटल आर वाले गैमीट को हम फ्यूज करवाते हैं तो हमारे पास ये जीनोटाइप आया कैपिटल आर कैपिटल आर। इस वाले गैमीट को यदि से फ्यूज करवाएंगे तो आप देखेंगे कि वन कैपिटल आर इज फ्रॉम दिस पेरेंट एंड वन स्मॉल आर फ्रॉम दिस पेरेंट। तो यहाँ पर जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों की क्रॉसिंग से कैपिटल आर स्मॉल आर और इन दोनों गैमेट्स की फ्यूजन से यहाँ पर आपको जीनोटाइप मिल रहा है स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ध्यान से देखिएगा इनका जीनोटाइप क्या है। एक जीनोटाइप तो होमोजाइगस, यहाँ पे लिख लेते हैं इनको, हमें जीनोटाइप मिले कैपिटल आर, ये होमोजाइगस है, दोनों एलील से एक जैसी हैं। और दो ऐसे मिले जो हेटेरोजाइगस हैं, कौन से केसेस हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके, एंड स्मॉल आर। तो आप देख सकते हो दो तो हमें होमोजाइगस केसेस मिले हैं और दो हमें हेटेरोजाइगस केसेस मिले हैं। तो एक होमोजाइगस केस जो रेड फ्लावर के लिए है, एक होमोजाइगस केस व्हाइट फ्लावर के लिए है और एक ये हाइब्रिड केस है। ये तो हुए जीनोटाइप, लेकिन इन जीनोटाइप्स की वजह से प्लांट में जो फ्लावर्स आएंगे वो किस तरह के आएंगे, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन। हम यहाँ मान चुके हैं कि ये कैरेक्टर यहाँ पर कहीं पर गुम हो गया है या ये इस केस में तो ये लगता है कि ये ब्लेंड हो गया है, दोनों कलर्स मिक्स हो गए हैं। इसीलिए हम इसको कंफर्म करने के लिए अगली जनरेशन में जाते हैं, सेल्फिंग करवाई कि रिजल्ट्स क्या होने चाहिए। अब जीनोटाइप हमारे पास ये है, यहाँ पर जब इनके बीच में सेल्फिंग करवाई जाती है, ये जो सेल्फिंग करवाई गई तो रिजल्ट्स कुछ ऐसे मिले। We obtain results red, white and pink. अब यहाँ पे आपको कुछ स्ट्राइकिंग लग रहा है, क्या हम जिस बात पर कह रहे थे कि पिंक जो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर जो हाइब्रिड प्लांट्स के अंदर कलर मिक्स हो गए हैं, फैक्टर्स मिक्स हो गए हैं, ब्लेंड कर गए हैं, इस वजह से पिंक कलर आ रहा है। आपको लगता है कि ये रिजल्ट उस ब्लेंडिंग थ्योरी को, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को कंफर्म करता है? क्या हम यहाँ पर ठीक थे कि ये ब्लेंड हो जाते हैं? एब्सोल्युटली नॉट, वी वर रॉन्ग, हम बिल्कुल गलत थे कि कैरेक्टर्स ब्लेंड हो जाते हैं। कैरेक्टर्स अगर ब्लेंड हो जाते तो हमें कभी भी रेड या व्हाइट फ्लावर्स दोबारा से नहीं मिलने थे। ये जो कैरेक्टर है, जो फ्लावर कलर आया है रेड और व्हाइट, ये रिकवर हुए हैं इस जनरेशन में, F2 जनरेशन में। दे वर नॉट मिक्स्ड विद ईच अदर। अगर मिक्स हो जाते, ब्लेंड कर जाते तो इनकी रिकवरी इस जनरेशन में पॉसिबल नहीं थी। ये अलग से दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये फैक्टर्स ब्लेंड नहीं किए। कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये दो फैक्टर्स की अपनी आइडेंटिटी है, सेपरेट है, वे मिक्स नहीं होते हैं। And this was shown in this result, F2 generation results। और इनकी रेशो आप देखिए, एक रेड मिला है, दो पिंक मिले हैं और वन व्हाइट मिला है। सो अगर आपसे ये कहा जाए जीनोटाइप रेशो बताइए, तो जीनोटाइप रेशो तो आप यहाँ देख के बता सकते हैं, एक कैपिटल आर, एक कैपिटल आर स्मॉल। यहाँ पर दो केसेस ऐसे मिले हैं जो हेटेरोजाइगस केसेस हैं, वन होमोजाइगस केस
रेड कलर फ्लावर, एक ये आपको हेटेरोजाइगस केस दिख रहा है और एक है स्मॉलर यानी 4 वाइट फ्लावर। तो यहाँ पर जीनोटाइप रेशो कितनी है? 1:2:1। लेकिन अगर इसकी आप फिनोटाइपिक रेशो भी बताना चाहें तो आप क्या कहोगे? फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, कितने रेड फ्लावर्स मिले, कितने पिंक मिले, कितने व्हाइट मिले। तो आप यहाँ देखते हो एक रेड फ्लावर, 2 पिंक और 1 व्हाइट, यानी यहाँ पर भी 1:2:1। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जो नोट करनी है कि ये वो एग्जाम्पल है जिसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो बिल्कुल सेम है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में रेशो क्या मिली थी? फिनोटाइपिक रेशो कितनी थी आफ्टर जनरेशन में? दैट वाज 3:1। 3 टॉल प्लांट थे और 1 ड्वार्फ प्लांट था। 3:1 वाज द फिनोटाइपिक रेशो इन केस ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है इसमें आप देखें फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो बिल्कुल सेम है। सो दिस थिंग यू हैव टू नोट है। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करें? ये पिंक कलर क्यों आया? क्यों नहीं यहाँ पे रेड फ्लावर आए? क्यों नहीं यहाँ पे व्हाइट फ्लावर आए? मतलब कोई एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना चाहिए था, ये तो मिक्स कुछ कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। और फिर जब हमने ये सोचा कि ये ब्लेंड हो गया है, मिक्स हो गया है, तो यहाँ पर भी हम गलत निकले कि ब्लेंड तो नहीं हुआ है, मिक्स तो नहीं हुआ है, क्योंकि मिक्सिंग होती तो ये रेड और व्हाइट कलर के जो फ्लावर बाद में रिकवर हुए हैं, ये कैरेक्टर जो रिकवर हो गया आफ्टर जनरेशन में आया है, ये नहीं आना चाहिए था। तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें, कैसे इस बात को एक्सप्लेन करें कि यहाँ पिंक कैरेक्टर कैसे है? ये जो आपको दिखाया गया है एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल इज शोइंग और इट इज रिप्रेजेंटिंग the incomplete dominance phenomena. We have studied here the incomplete dominance here. इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पहले एक बार फिर से मेंडल के रिजल्ट पे जाएं। हमें मालूम है कि अगर कैपिटल T एंड स्मॉल t ये दो फैक्टर डिसिमिलर एलील्स, डिसिमिलर फैक्टर्स एक साथ हों तो इनमें से कोई एक ही एक्सप्रेस करता है। जैसे मेंडल के पी प्लांट में टॉल कैरेक्टर ने अपने आप को एक्सप्रेस किया था, टॉल कैरेक्टर वाज डोमिनेटिंग ओवर स्मॉल टी, यही पढ़ा था। इसीलिए सिर्फ एक ही कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, टॉल सभी प्लांट्स टॉल दिखाई देते हैं। तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वो ये शो करते हैं एक फैक्टर पूरी तरीके से मींस कंप्लीटली dominating over the other factor. कैपिटल T पूरी तरीके से कंप्लीट फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करता है एंड T को एक्सप्रेस नहीं होने देता। तो मेंडल के जितने भी रिजल्ट्स थे देयर वर एग्जांपल्स ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस व्हेन ए फैक्टर when there is a pair, a dissimilar pair is present, two dissimilar type of alleles are present in a pair, then only one factor will express itself. It is not going to allow expression of other factor. It is completely dominating on other factor, and this phenomenon is known as complete dominance. But यहाँ पे ये complete dominance नहीं है, बल्कि हम इसे कहेंगे incomplete dominance. Why incomplete dominance? Because जो ये character था R factor is not completely dominating over small r. अगर ये इसे पूरी तरीके से डोमिनेट करता तो रेड फ्लावर्स आने थे, या इसको उल्टा सोचे कि अगर r स्मॉल r अगर इसके ऊपर डोमिनेट करता है रेड फ्लावर के ऊपर, तो यहाँ पर क्या आना था? व्हाइट फ्लावर्स आने चाहिए थे, या तो रेड आने चाहिए थे या व्हाइट आने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ, हमें तो इंटरमीडिएट कलर मिला है। ये इसका मतलब ये है कि जो ये रेड फ्लावर की जो फैक्टर है ये इस स्मॉल r के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं करती, इनकम्प्लीट डोमिनेट करती है। और इनकम्प्लीट डोमिनेट करने से कुछ एक्सप्रेशन इस स्मॉल r का भी आता है, जिसको हमें मिक्स फॉर्म में दिखाई देता है, पिंक फॉर्म में दिखाई देता है। तो पिंक में यहाँ पर कैपिटल R इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेटिंग ओवर द स्मॉल r, इसका एक्सप्रेशन यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन है। ये जो
लाइट रेड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मिक्सिंग नहीं है कि सफेद और जो रेड कलर है ये मिक्स नहीं हुए हैं, बल्कि ये पिंक हमें इसके नजर आता है, क्योंकि जैसे अभी मैंने कहा इस पिंक को आप मानिए लाइट रेड, और लाइट रेड का मतलब ये है कि ये जितना डीप रेड कलर कैपिटल आर केस में दे सकता था, इसने वहां यहाँ पर स्मॉल आर की वजह से उतना डीप रेड नहीं एक्सप्रेस किया, और डीप रेड एक्सप्रेस ना होने की वजह से ओवरऑल कलर इस फ्लावर का पिंक आता है। ओके, सो कैपिटल आर इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेटिंग ओवर स्मॉल आर। ये अकेला जो एलील है यहाँ पर ये सफिशिएंट नहीं है कि ये डीप रेड कलर इस फ्लावर को दे सके, इसीलिए ये हल्का रेड आता है, जिसको आप पिंक जिसको आप पिंक देखते हैं। तो एक्सप्रेशन इज द लाइट रेड here. So how you will define the incomplete dominance here? Incomplete dominance is the phenomena when only, or you can say when two dissimilar forms of characters are present or factors are present, then one factor is incompletely dominating over other factor or its form. The phenomena is